خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب ایس پی ایس بائبل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر دامیانو صادق ہے اور میرا تعلق ریما اسمبلیز لاہور پاکستان سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں ایس پی ایس بائبل ٹی وی کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس چینل کے وسیلے سے کلام خدا کی خدمت کر سکوں۔ اور میں اس ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں، اس ٹی وی چینل کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو آئیں ہم زندہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر آپ نکالیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں افیسیوں کا خط ہے اور اس کا 6واں باب ہے اور 6 باب کی 18ویں آیت ہے، اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اور میرے عزیزو، آج میں جس مضمون پر بات کروں گا وہ ہے روح میں دعا کرنا۔ روح میں دعا کرنے سے ہماری شخصی ترقی بھی ہوتی ہے اور کلیسیائی ترقی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے، اور آپ اس مضمون کو اور اس کلام کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں آج آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جتنے بھی سن رہے ہیں، آئندہ کے لیے آپ روح میں دعا کرنا شروع کریں۔ روح میں دعا کرنا زور آور ہوتا ہے، روح میں دعا کرنا پاورفل ہوتا ہے، اور روح میں دعا کرنا فتح مند ہوتا ہے۔ اس لیے مقدسین جو ہیں وہ روح میں دعا کرتے رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح روح میں دعا کرتا رہا ہے، اور پولس رسول جو ہے وہ روح میں دعا کرتا رہا ہے، اور پترس رسول جو ہے وہ روح میں دعا کرتا رہا ہے۔ عام دعا میں اور روح میں دعا کرنے میں فرق ہے۔ عام دعا جو ہے یہ ٹھنڈے مصبے کی طرح ہے، لیکن روح میں دعا کرنا آگ میں دعا کرنا ہے، آگ میں رہنا ہے، اور یہ اس طرح سے مصباح پر آگ ہر وقت جلتی رہتی ہے، مصباح ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے روح میں دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو ہم ہر طرح سے غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور ہم فتح میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اگر ہم اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پولس رسول جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند کی قدرت میں مضبوط ہوں گے تو تب ہی ہم فتح پا سکیں گے اور ابلیس پر غلبہ حاصل کریں گے۔
दरअसल हमारा जो मुकाबला है वो दरअसल इब्लीस के साथ है। ये रूहानी जंग है और रूहानी जंग के लिए हमें हथियारों से लैस होने की जरूरत है। और जब हम हथियारों से लैस होते हैं तो हम फतह पाते हैं, लेकिन अगर हथियारों में से एक हथियार भी कम हो तो हम शिकस्त खा जाते हैं। इसलिए हमें हथियारों से लैस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो 12वीं आयत में लिखता है, इफिसियों और उसका 6वां बाब 12वीं आयत, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। ये रूहानी जंग है और इस रूहानी जंग के लिए हमें हथियारों की जरूरत है, हमें लैस होने की जरूरत है। और लैस हम उस दौर ही होंगे, उस वक्त होंगे जब हम रूह में दुआ करेंगे। जब कोई शख्स रूह में दुआ करता है तो वो गैर जुबानों में दुआ करता है और रूहुल कुद्स में दुआ करता है। और मेरे अजीजों, याद रखें, रूह में वो शख्स दुआ कर सकता है जिसको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ हो, जिसको रूहुल कुद्स का तजुर्बा हुआ हो और जिस पर पाक रूह का मसा हो। इसलिए मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि अपनी जिंदगियों में रूहुल कुद्स को जरूर हासिल करें, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जरूर लें। और जब आप रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लेंगे, जब पाक रूह आपके अंदर आएगा तो वो आपके अंदर रहकर दुआ करेगा, वो आपके अंदर रहकर आपकी हदायत करेगा। और जब रूहुल कुद्स आपके अंदर होगा और कुव्वत के लिबास की तरह आपके साथ होगा, बाहर भी होगा, तो फिर आप एक मजबूत हसार के अंदर होंगे और इब्लीस के जलते हुए तीर जो हैं वो आप पर असर नहीं कर सकेंगे। इसलिए रूह का लिबास हमारे पास होना जरूरी है। और जब हमारे पास रूह का लिबास होगा तब हम रूह में जिंदगी बसर करेंगे और रूह में दुआ भी करेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि जब तक तुम्हें ऊपर से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम से बाहर ना जाना। लेकिन जब पाक रूह उनको मिल गया, रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हो गया, तो फिर मेरे अजीजों उन्होंने खिदमत का काम शुरू किया। और रोमियो का खातर उसके 8वें बाब में भी हम पढ़ते हैं, आए मेरे साथ देखें, रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत। तो खुदा के कलाम में लिखा है, और इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें
भर भर कर हमारी शिफायत करता है, जिसका बयान नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, जो रूह में दुआ करता है उसके अंदर रूह कुद्स दुआ करता है। जब हम कमजोर होते हैं, जिस्म रखते हुए और इंसानी फितरत में हम कमजोर हैं, हम थक जाते हैं, हम उकता जाते हैं, हम भूल जाते हैं और बाज़ औक़ात हम सुस्त हो जाते हैं और इब्लीस के सामने सुस्त पड़ने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त पाक रूह जो है वो हमें अंदर से उभारता है। पाक रूह हमारे अंदर से दुआ करना शुरू कर देता है और पाक रूह हमारे बिहाफ पर खुदा से दुआ करता है, क्योंकि पाक रूह जो है वो पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम है, वो इलाही ज़ात है, वो खुदा है। इसलिए वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हमारी शिफायत करता है। जिस तरह खुदा चाहता है वो वैसे दुआ करता है और हमें तहरीक देता है कि हम दुआ करें। फिर हमारी दुआ जो है, हम दुआ करने लगते हैं, हमारी दुआ जोरावर होती जाती है, हम कुव्वत में आ जाते हैं और हमारी दुआ जो है वो खुदा के पाक हुजूर में मकबूल ठहरती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, रूह कुद्स हमारे अंदर आहें भर भर कर दुआ करता है और हमें फतह मिलती है, हम कामयाब होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, रूह में दुआ करना बहुत जरूरी है। और जब हम रूह में दुआ करते हैं तो दिल से दुआ करते हैं और ये शिफायत होती है। और जब हम रूह में दुआ करते हैं तो हम बेगाना जुबानों में दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि कोई उसकी नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह से भेद की बातें कहता है। तो जब हम खुदा से बातें करते हैं तो उनको सिर्फ खुदा जानता है और हमारी तरक्की होती है। और जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। जैसे कि पहले कुरिन्थियों उसके 14वें बाब की 4थी आयत में लिखा होता है। और जब हम रूह में दुआ करते हैं तो हमारी तरक्की होती है, और हमारी तरक्की इस तरह से होती है कि एक तो जब हम दुआ में बैठते हैं हमारी दुआ लंबी होती जाती है। रूह कुद्स हमारी दुआ में जोर पैदा करता है, और पहले जहां पर हम दुआ नहीं कर सकते दुआ लंबी ही होती चली जाती है, और दूसरे नंबर पर हम रूह से भी मामूर होते चले जाते हैं, और तीसरे नंबर पर हम पर खुदावंद की हजूरी बढ़ना शुरू हो जाती है, और चौथे नंबर पर हम पर मसा ठहर जाता है, और पांचवें नंबर पर अजीब काम और मौजज़ात होते हैं, और छठे नंबर पर इब्लीस को और बदरूहों को शिकस्त और शर्मिंदगी होती है। और इसके साथ ही रूह की दूसरी नेमतें भी ऑपरेट होना शुरू हो जाती हैं। जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं, जब हम बेगाना जुबानों में दुआ करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो बेगाना जुबान आती है, और बेगाना जुबान में तसलसल के साथ हर रोज दुआ करने से, हर रोज रूह में रहने से जो रूह की दूसरी 8 नेमतें हैं वो भी काम करना शुरू कर देती हैं। यानी हमें हिकमत का कलाम मिलता है, और हमें इल्मियत का कलाम मिलता है, और हमें इम्तियाज अरवा मिलता है, हमें मौजज़ात की कुदरत अता होती है, और हम
तर्जमा भी कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम रूह में दुआ करते हैं तो हम जोर आवर होते चले जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया तो कि जब हम रूह में दुआ करते हैं तो शैतान को, इब्लीस को आग लगती है। हमारी जो जंग है ये इब्लीस के साथ है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम रूह में दुआ नहीं करते, अगर हम रूह में जिंदगी नहीं गुजारते, अगर हमें रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ तो हम ठंडे मजबे की मानद हैं। और अहबार की किताब 6 बाब में ये बात लिखी हुई है कि मजबा पर आग हर वक्त जलती रहे। और जैसे कि अमाल की किताब के 2 बाब की 3 आयत में हम पढ़ते हैं कि आग के शोले किसी फटी हुई जुबानें उन पर हर एक पर आकर ठहरी और वो सब रूह कुद्स से भर गए। हमें आग के शोले बनना है और हमें, हमारा बदन जो है ये खुदा का मजबा है। और इस मजबा पर जब हर वक्त आग जलती रहेगी तो मेरे अजीजों, हम जलती हुई बच्ची की मानद होंगे और इब्लीस जो है वो शर्मिंदा होगा, वो करीब भी नहीं आ सकेगा। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जो लोग जंगल में रहते हैं और रात को जंगल में बसेरा करते हैं, खासकर जो अफ्रीका के लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, रात को वो लकड़ियों से आग जो है सारी रात जला कर रखते हैं। उनके करीब जो है आग का अलाव होता है और जब आग मसलसल उनके करीब होती है तो जंगली जानवर जो हैं वो आग को देखकर करीब नहीं आ सकते और वो लोग जो हैं वो महफूज रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें भी आग के शोले बनना है। जब हम रूह में दुआ करेंगे, जब हम गैर जुबानों में दुआ करेंगे तो हम हर रोज भड़कती आग की मानद बनते चले जाएंगे और फिर खुदावंद की कुदरत हमारे वसीले से जाहिर होगी। खुदा मुअज्जिज़ात करेगा, खुदा अजीब काम करेगा। जो हवाला मैंने आपके सामने इफिसियों के खात और उसके 6 बाब की 18वीं आयत से पढ़ा है, इस हवाले को केनेथ कैरल, जिसने रूह कुद्स का जोर आवर दरिया किताब लिखी है, वो इसको गैर जुबानों में दुआ करना कहता है। जब हम रूह में दुआ करते हैं तो गैर जुबानों में दुआ करते हैं, और जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो खुदा से बातें करते हैं, और जब हम खुदा से बातें करते हैं तो हम अपनी तरक्की करते हैं। और जब हम अपनी तरक्की करते हैं, जब हमारी तरक्की होती है तो रूह में तरक्की होती है और हम खुदा के सूरमा बन जाते हैं। हम तमाम हथियारों से लेस हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको आज के दिन इनकरेज करना चाहूंगा कि रूह में दुआ किया करें, रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में हासिल करें। अगर आज तक आपको पाक रूह नहीं मिला, रूह का बपतिस्मा नहीं मिला, तो जरूर इसे हासिल करें। जरूर खुदा से मांगे कि खुदावंद, तूने वादा किया है कि आखिरी दिनों में मैं अपने रूह से हर बच्चे पर अंडे दूंगा और तुम्हारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे। तो खुदा से कहें, खुदा मुझे भी रूह कुद्स का बपतिस्मा अता कर, मुझे भी पाक रूह दे। और इसके लिए आपको तौबा करनी होगी। जब आप तौबा करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तो अमाल की किताब और उसके 2 बाब की 38वीं आयत के मुताबिक रूह कुद्स आपको इनाम में मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है
کہ آپ خدا سے پاک روح مانگیں، اور جب آپ روح القدس کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسرے انسان بن گئے ہیں، آپ زور آور بن گئے ہیں، آپ میں ایک نئی قوت آ گئی ہے، جس طرح ساؤل کو روح القدس کے وسیلے سے نئی قوت مل گئی تھی، جس طرح داؤد کو روح القدس کے وسیلے سے نئی قوت مل گئی تھی، اور جس طرح سے یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے ان کو روح القدس کے وسیلے سے نئی قوت مل گئی تھی، وہ نئے انسان بن گئے تھے، وہ زورآور بن گئے تھے۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 4 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب کاہنوں نے دیکھا کہ یہ تو ان پڑھ اور ناواقف لوگ ہیں تو تعجب کیا، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس وقت ان پر روح القدس تھا، اور روح القدس کی قدرت کے ساتھ وہ بولتے تھے، وہ عجیب کام کرتے تھے، معجزات ہوتے تھے، اندھے دیکھتے تھے، اور لولے اور لنگڑے جو تھے وہ چلتے تھے، اور مردے زندہ ہوتے تھے، اور یہ سارے کام کون کرتا تھا؟ روح القدس کرتا تھا۔ اس لیے میں آج آپ جتنے بھی خدا کے کلام کو سن رہے ہیں ابھارنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنی زندگیوں میں روح القدس کو حاصل کریں، اور روح میں دعا کرنا شروع کریں، روح میں دعا کیا کریں۔ عام جو آپ دعا کرتے ہیں یہ بری نہیں ہے، یہ دعا اچھی ہے، لیکن جب آپ کو روح القدس کا تجربہ ہوگا تو آپ زور آور بن جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں روح القدس کا تجربہ کیا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ کام خداوند کے عجیب کام دیکھے ہیں جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خداوند نے میرے وسیلے سے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، آج بھی معجزات ہو رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی بڑے بڑے معجزات ہوں گے، آپ کی زندگی میں بھی عجیب کام ہوں گے، اور آپ غلبے کی زندگی بسر کریں گی۔ بدروہیں چیخ چیخ کر نکل جائیں گی، شرمندہ ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو آگ لگے گی۔ آپ کے پاس آگ ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ کے شعلے ہونے چاہیے، آپ کو آگ کا شعلہ ہونا چاہیے، آپ کو بجھے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ٹھنڈے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ روح میں دعا کیا کریں، غیر زبانوں میں دعا کیا کریں، بیگانہ زبانوں میں دعا کیا کریں۔ اور شاگردوں کو، یسوع مسیح کے شاگردوں کو یہ زبانیں عطا ہوئی تھی، اور ہمارے لیے یہ وعدہ ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ وعدہ تم سے اور تمہاری نسلوں سے، ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ وعدہ ہے۔ اور روح القدس صرف شاگردوں ہی پر نازل نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں آنے والوں پر بھی نازل ہوا تھا، اور آج بھی روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے آسمان پر چلے جانے کے بعد روح القدس کو جا کر وہاں سے میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے، اور وہ آج تک واپس نہیں گیا۔ 100 سالہ مصیبت سے پہلے روح القدس کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو ساتھ ہی روح القدس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، لیکن 7 سالہ مصیبت میں بھی روح القدس کام کرے گا۔ تو آج جب کہ روح القدس ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو میرے عزیزو ہمیں روح القدس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ روح میں دعا کریں گے تو آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں
आपके दोस्तों में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके इलाके में आपकी वजह से एक चेंज आएगा, एक तब्दीली आएगी और आप खुदाम के शागिर्द कहलाएंगे और आप शादमानी से भर जाएंगे और इब्लीस जो है वो उस इलाके के मुवक्किल को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ रूहुल कुद्स है, आपके साथ खुदा है, आपके साथ इलाही जात है, आपके साथ खुदा की कुदरत है और इब्लीस खुदा की कुदरत का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर रूह में दुआ करना सीखें, आप रूह में दुआ किया करें और जरूर आप अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा करें। मैंने अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा किया है, इसलिए मैं आज आपके सामने कलाम पेश कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, सच्ची गवाही दे रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं और आप मेरी बात पर यकीन करें। आप भी पतरस रसूल की मानद बन जाएंगे, आप भी यूहन्ना रसूल की मानद होंगे, आप भी पौलुस रसूल की मानद होंगे और खुदा आपके वसीले से बड़े बड़े अजीब काम करेगा। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आपने जरूर बरकत पाई है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद मौजूद है और मैं आपके लिए बरकत चाहने वाला हूं और पाकरू से मैं कहूंगा कि पाकरू आपको छू ले और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। खुदावंद जिंदा खुदा, मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहा है, सुन रही है, खुदावंद आज के कलाम के वसीले से तो इस बहन को, इस भाई को छू ले। पाकरू तो इससे टच कर ले, पाकरू तो इस जिंदगी में आजा, पाकरू तो इस जिंदगी को बदल डाल, पाकरू तो इस जिंदगी में अजीब काम कर, पाकरू तो इसको जोर आवर बना दे, इससे तौबा की तौफीक अता कर और इसकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात हों, इसकी जिंदगी में अजीब काम हो, इसकी जिंदगी जोरावर जिंदगी बन जाए, इसकी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। और खुदा ये एक तेरा बहुत बड़ा गवाह ठहरे और खुदा ये तेरी बहुत बड़ी गवाह ठहरे। मैं खुदा तेरी बंदी को, तेरे बंदा को ब्लेस करता हूं, बरकत देता हूं, ब्लेस करता हूं। रोह को से टच कर, पाकरू से छू ले। पाकरू जितने भी आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो उन्हें छूना, टच करना, भरना, मामूली देना, बरकत देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा इन जिंदगियों से कसरत के साथ तेरा चला जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।